Very good morning, class 11 biology. Till that, chapter number 2 we have completed Monera and Protista. Fungi is almost finished, reproduction part and its classification is remaining. Okay, so today we are going to see about the reproduction in fungi, means how do they reproduce. So let's check the previous things we studied. So previously you studied that what is the structure of fungi. First of all, they are like the filaments, है ना, you remember. So that filament may be septed, it is septed, or may be non-septed or asepted, ठीक है, may be branched or unbranched, like that. So that was the structure of the fungi, ठीक है. Then we also studied about the spores. They produces spores, means tiny round structures, and they are nothing but the kind of seeds. From these spores new fungi are formed. ये सब हमने पढ़ा है, राइट. ओके. Then mycelium structure. Mycelium we have studied, means network of many hyphae, and this is hyphae, this is mycelium. We also studied about another terminology, fruiting body. Fruiting body, it is fruiting body. Fruiting body है ना, इसमें क्या बनते हैं, spores. Here spores are formed. So these were some basic things we studied about the fungi. वैसे बहुत स्पेशल हैं ये, और बहुत सारे स्टडी भी बाकी है, completely they are not studied. Okay. Then cell wall we have studied. Cell wall is made up of another chemical that is called as chitin, if you remember, chitin, right? Okay. Then they may be heterotrophic, autotrophic or symbiotic, right? But generally they are saprotrophic, means they feed on dead material, they decay them, and they play a lot of role in converting the dead items into humus, means humification of the soil also they take part, right. अब हम इसका रिप्रोडक्शन देखेंगे. तो इन रिप्रोडक्शन देयर आर 3 मेथड्स. वेजिटेटिव, तो ये बहुत सिंपल है. वेजिटेटिव में बडिंग हो सकता है, बडिंग. फॉर एग्जांपल yeast, I told you yeast in class 10th also you studied. This is yeast. One bud is formed, this bud is grown and separated from the main body, and 2 yeasts are formed, so it's also vegetative part. Then fragmentation. ये जो हाइफे पड़े हैं, ये हाइफे बीच से कट करके दे स्टार्ट्स ग्रोइंग एंड बिग हाइफेज आर फॉर्म्ड. सो फॉर एग्जांपल इट वाज अ हाइफे, then this hyphae can cut into many pieces, and each piece will grow into a new fungi or hyphae. So this is which type of reproduction? Vegetative, right. Now asexual reproduction. In your book about asexual reproduction, हालांकि ये भी one kind of asexual itself, but not given too much details of asexual reproduction, right. 1 2 3 new, these are new, ठीक है. asexual reproduction. Asexual reproduction means a single hyphae can produce spore, और ये इसमें भी क्या प्रोड्यूस होते हैं, spores. So those spores which are produced by asexual methods are called as asexual spores. Okay. Asexual spores. अब asexual spores कैसे हैं देखते हैं. For example, it is a hyphae, nucleus, branched, this is hyphae. ये आपको पता है ये एक हाइफे है या एक फ्रेगमेंट है फंजाई का. ये ब्रांच होगा, ग्रो होगा,
and after branching and growth. अब पता नहीं, अब क्लास 10th में आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज जैसे कि हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, आप बता सकते हैं क्या है हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड? हैप्लॉइड मीन्स n, डिप्लॉइड मीन्स 2n. ये n and 2n they are denoting the number of chromosomes. n number of chromosome means half and it is double या full. तो जनरली हाइफे के अंदर जो न्यूक्लियस है, दिस न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स एंड दीज आर ऑलवेज, जनरली यू कैन से दे आर n. सो हाइफे इज ऑलवेज हैप्लॉइड. अब दो तरह के सेल डिवीज़न पढ़े हैं आपने, वो भी क्लास 9th में है, क्लास 10th में ही पढ़ा होगा आपने. ये सब अभी बेसिक आ रहे हैं ना, अभी हम कोर पे नहीं आए. सेल डिवीज़न, माइटोसिस एंड मियोसिस, ये दो सेल डिवीज़न 9th में ही पढ़े हैं, 10th में ही पढ़ाया आपको. देखते हैं फिर से इनको. मान लो एक कोई सेल है जिसके अंदर जो क्रोमोसोम है n है, वो डिवाइड हो करके ऐसी दो सेल्स बनाती हैं जिनमें भी n है. तो ये कैसा डिवीज़न हुआ देखते हैं. अब मान लो कोई सेल 2n है, उसके न्यूक्लियस में 2n क्रोमोसोम्स हैं, and after division it again forms 2n. So this is the original cell and these are the new cells. This is parent cell and these are the new cells, यानी हम daughter cells बोलते हैं, daughter cells. So if the number of chromosomes, number n, if the number of chromosomes is same in parent cell and daughter cell, it is called as mitosis. ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं? माइटोसिस के. अब दूसरा देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल वन सेल इज 2n एंड आफ्टर डिवीजन, बट ये ध्यान रखना है 4 बनते हैं, इट बिकम्स n. So this is haploid, then this is also haploid. This is diploid, then they are also diploid, but here you see it is diploid. Parent cell is diploid and daughter cells are haploid. This kind of cell division is called as meiosis. ये थोड़ा क्लियर करेंगे and I request you to see it again and again. These both examples, if the cell nucleus has n number of chromosomes and it is producing new cells with the same number of chromosomes nn, here also suppose it is 2n and it is producing 2n, then also it is mitosis. But if the cell is 2n and after division it is producing new cells produced, they are n, then they are haploid, so this is meiosis. Here it is diploid, it is haploid, so from diploid to haploid formation is meiosis, but from diploid to diploid or haploid to haploid is mitosis. ठीक है, डन. तो हम यहाँ थे कि एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं. सो सपोज हाइफे इज हैप्लॉइड, मीन्स ऑल द न्यूक्लियस आर हैप्लॉइड. दिस विल ग्रो अगेन ब्रांच, और इनमें से कुछ सेल में कौन सा डिवीज़न होगा? माइटोसिस. तो ये सेल कैसे हैं? n, और n से डिवीज़न होकर के ऐसे बाहर की तरफ कुछ स्पोर्स लग जाएंगे और ये ऐसे डिटैच हो जाते हैं. मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है. सपोज वन हाइफे, इट इज ब्रांच्ड, देन दिस विल स्टार्ट डिवीज़न. ये डिवाइड होना शुरू होंगे और डिवाइड होके हैप्लॉइड, ये भी n, ये फिर और डिवाइड होगा n. ऐसे बहुत सारी हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी और एक दूसरे से अलग हो जाएंगी. दे आर नॉट अटैच्ड, दे बिकम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. तो ये किसका काम कर रहा है एक्चुअली? दिस इज वर्किंग एज फ्रूटिंग बॉडी.
और ये क्या बन जाते हैं, स्पोर्स। लेकिन कैसे बन गए ये, माइटोसिस प्रोसेस से। तो सो दैट दिस काइंड ऑफ स्पोर्स आर कॉल्ड एज एसेक्सुअल स्पोर्स। कैसे स्पोर्स हैं ये, एसेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है। और फिर क्या होगा, ये जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं दे विल बी रिलीज्ड इन एयर, और मान लो ये स्पोर है, एन है ये भी, ठीक। फिर जैसे सीड को आप पानी में रख देते हैं, देन इट जर्मिनेट्स, सो दिस विल ऑल्सो जर्मिनेट, internal part will come outside like that, it will grow, then it becomes like filament और internally divide हो जाएगा। फिर से क्या बन गया, हाइफे। हाइफे में फिर यही प्रोसेस होगी एंड कंटिन्यूसली दिस इज गोइंग ऑन। हाइफे और हाइफे, फिर ऐसे ही प्रोसेस, देन इट विल अगेन प्रोड्यूस एसेक्सुअल स्पोर्स, देन हाइफे में कुछ पार्ट माइटोसिस करेगा, देन अगेन एसेक्सुअल स्पोर्स, लाइक दैट, ठीक है। सो इट इज़ एसेक्सुअल मेथड या एसेक्सुअल स्पोर्स, ठीक। अब स्पोर्स बनने के मतलब स्पोर्स के प्रेजेंट होने की दो कंडीशंस हैं। हो सकता है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन फ्रूटिंग बॉडी। फॉर एग्जांपल ये फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है, ऐसे। फॉर एग्जांपल इट इज फ्रूटिंग बॉडी, सो इन फ्रूटिंग बॉडी स्पोर्स कैन प्रेजेंट आउटसाइड, ऐसे प्रेजेंट हो सकते हैं। और ये दे कैन बी डिस्पर्स्ड, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं ईजिली, दीज आर स्पोर्स, क्योंकि बाहर डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में, देयर डिस्पर्सल इज ईजी। इस तरह के स्पोर्स को जो फ्रूटिंग बॉडी में बाहर की तरफ लगे हैं, दे आर कॉल्ड एज एक्सोजीनस, एक्सोजीनस स्पोर्स। सेकेंड मेथड हो सकती है, अगेन फॉर एग्जांपल इट इज फ्रूटिंग बॉडी, filament in fruiting body and the spores may present inside the fruiting body। तो इस ये easily they can't move out, और इनके ऊपर environment का भी कम फर्क पड़ता है, because they are encapsulated or caged, or you can say enclosed inside a bag like structure, that is again what, fruiting body। or inside spores are present. So this kind of method in which spores are formed inside a bag like structure, it is called as endogenous spores. So either it is sexual spore or asexual spores, both can be formed either endogenously or exogenously। तो वो फ्रूटिंग बॉडी के बाहर भी लगे रह सकते हैं और फ्रूटिंग बॉडी के अंदर भी लगे रह सकते हैं। सो दीज टू टर्मिनोलॉजीज यू रिमेंबर, इंडोजीनस एंड एक्सोजीनस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। ओके, नाउ सम नेम्स आर ऑल्सो देयर फॉर दीज स्पोर्स। फॉर एग्जाम्पल द स्पोर्स विच आर फॉर्म्ड लाइक दिस, दे आर कॉल्ड एज कोनिडिया, कोनिडिया। दे मे बी जू स्पोर्स, जो बाहर की तरफ चलते हैं। जू का मतलब होता है दे कैन मूव, इनमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं एंड दे कैन मूव। जिधर भी ZOO जू लगा हुआ है, इट मीन्स दे आर मोटाइल। मोटाइल मतलब चल फिर सकते हैं, मोटाइल। एंड दे आर कॉल्ड एज और में स्पोरेंजियोस्पोर, sporangiospours. So some names are given. These three kinds of asexual spores are there: conidia, zoospores or sporangiospores. Three kinds of asexual spores that we are studying, right? ठीक है।
Now let's move to the sexual reproduction. Sexual reproduction in fungi is somehow complex, right? And you have to focus very much on them. So okay, sexual reproduction. So it is clearly showing that what may be present, gametes are produced. गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। और वो गैमेट्स कैसे होते हैं, प्लस माइनस या फीमेल और मेल। ये सिंबल्स हैं, इसको थोड़ा याद रखेंगे। दिस सिंबल इज़ फॉर मेल एंड दिस सिंबल इज़ फॉर फीमेल, एंड व्हेन बोथ कंबाइन दे फॉर्म zygote. Okay, or again what I am saying, gametes are always n. These are basic things I am telling to you. Fungi produces gametes, and gametes are n, means haploid. One gamete will be female gamete, one gamete will be male gamete, both combines or fused to form zygote. तो जब ये n है, this is also n, this is also n, then zygote will be 2n. So it is diploid. Now let us see the sexual reproduction process in them. Okay, now you know what is this? This is mycelium, means many hyphae or threads. Okay, so when the mycelium becomes mature, तो कुछ पार्ट इसके जो होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में. सो दीज आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, है ना. ऐसा कोई ऑर्गन नहीं होता है, मतलब बस क्योंकि उनमें गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये सब जो दिख रहे हैं आपको, ये सपोज ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं. देन दीज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कुछ जो होते हैं वो मेल होते हैं. मान लो हम इसको मानते हैं ये मेल है, और फॉर एग्जांपल इसको मानते हैं ये फीमेल है. देन दे प्रोड्यूसेस गैमेट. इट्स ऑल्सो प्रोड्यूसेस गैमेट. अब ये जो गैमेट्स हैं इसके कुछ टाइप्स हैं. हो सकता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक ही साइज़ के हैं और एक ही शेप के हैं, एक जैसे दिखते हैं, साइज एंड शेप सेम. तो इसे बोलते हैं हम आइसोगैमस. इन योर बुक ऑल्सो इट्स गिवन आइसोगैमस. ठीक है. अब क्या हो सकता है, हो सकता है मान लो ये है आपका मेल और ये है फीमेल, बोथ आर ऑफ सेम साइज एंड शेप, देन दिस टाइप ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एज आइसोगैमस. देन मे बी मेल गैमेट इज स्मॉल and for example female gamete is big. Size is different. तो जब दो गैमेट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, if their size and shape is different, then it is called as anisogamous. Anisogamous. या इसी को हम oogamous ही बोल सकते हैं. क्या? oogamous और anisogamous. तो ये दोनों सेम साइज शेप के भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं. ओके, सो नाउ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, एंड दीज आर विच स्पोर्स? बिकॉज गैमेट्स ना, सॉरी, गैमेट्स नॉट स्पोर्स, गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड. ओके, सो व्हाट इज प्रोड्यूस्ड? gametes are produced. Now it is for example n male gamete and it is for example n female gamete.
then definitely they will fuse. So for example, they are fusing. So after fusing, it became 2n. It is 2n. It is called as ज़ाइगोट, या फंगस के केस में इसे हम एक और दूसरे नाम से ये बोलते हैं, इट इज़ ज़ाइगोस्पोर। ये स्पोर नहीं है, ये ज़ाइगोट है, बट इसी ज़ाइगोट से आगे स्पोर्स बनेंगे। वी आर सेइंग इट एज ज़ाइगोस्पोर। ठीक है, राइट। अभी कैसा है, 2n। नाउ इट विल स्टार्ट ग्रोथ। कौन, ज़ाइगोस्पोर। आफ्टर मीटिंग ऑफ टू गैमेट्स, ज़ाइगोस्पोर और ज़ाइगोट इज फॉर्म। इट विल स्टार्ट ग्रोइंग, इट विल एब्जॉर्ब नरिशमेंट मीन्स फूड एंड इट स्टार्ट्स ग्रोइंग। तो अब इसकी सेल्स में थोड़ा छोटी बनाता हूँ, बहुत सारी सेल्स बनेंगी इसकी। और ये एक बड़ा सा बॉडी बना लेगा, और फिर इसमें क्या बन जाएंगी, फ्रूटिंग बॉडी। इट्स बॉडी इज फॉर्म। ये माइसीलियम जो शुरू में था वो रहेगा। सब 2n है, ऑल 2n। ठीक है, दीज ऑल आर 2n, कोई भी n नहीं है इसमें। आपको पता है मशरूम है ना, ऐसा दिखता है ना, लाइक अम्ब्रेला। So this zygospore, it grows and takes a shape of fungal body। अब इनकी कुछ सेल्स, ये सारे 2n ये याद रखेंगे अब, all are 2n cells, every part is, because it is multicellular। सब कैसे हैं, 2n बॉडी, बिकॉज किससे बना है ये ज़ाइगोट से, और ज़ाइगोट 2n है तो all are 2n। तो कैसा प्रोसेस हो रहा है, माइटोसिस, क्योंकि 2n से सारे 2n ही बन रहे हैं, सो इट इज़ माइटोसिस। ओके, फिर से देखते हैं। सो दिस कंप्लीट बॉडी इज 2n। अब इसकी कुछ सेल्स यहाँ, सम सेल्स, दे स्टार्ट्स मियोसिस सेल डिवीजन। कौन सा सेल डिवीजन, मियोसिस। और मियोसिस क्या होता है, अब ये पूरी बॉडी 2n है तो ये 2n सेल होगी इसकी। 2n होने के बाद ये डिवाइड होगा और कितने सेल्स बनाएगा, 4, और ऑल 4s आर n। 1 2 3 4। So these all are haploid। और ये सारे सेल्स ऐसे यहाँ पर स्पोर्स ऐसे यहाँ अटैच हो जाएंगे। अब ये जो बॉडी बनी है आपको, ये ऐसे भी हो सकती है जैसे यहाँ बना आपने, फिर वो ऐसे भी हो सकती है। कई फंजाई की बॉडी ऐसी होती है। ठीक है, फिर वो पूरा मतलब दिस में भी द फर्स्ट शेप, तो यहाँ फिर वो स्पोर्स लिखते हैं ऐसे, और दिस इज सेकंड शेप, थर्ड ऐसा हो सकता है। ऐसे भी फंजाई होते हैं, आपको पता है, तो उसके स्पोर्स भी अंदर यहाँ लगते हैं। सो दे मे बी डिफरेंट शेप। तो ये फ्रूटिंग बॉडी के शेप
डिफरेंट हो सकते हैं और उसके अंदर बनने वाले ये क्या हैं, ये हैप्लॉइड स्पोर्स। इन हैप्लॉइड स्पोर्स के नेम अलग अलग हैं, 3 टाइप के हैं। तो ये कैसे, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना था, ये दिस होल बॉडी वाज मेड अप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दिस बॉडी प्रोड्यूस्ड हैप्लॉइड स्पोर्स. So these are which spores actually? Sexual spores. They have some names. Sexual spores may be oospores, they may be ascospores, or they may be basidiospores. कौन कौन से स्पोर्स? They may be oospores, ascospores or basidiospores. I request you to watch this again and again, otherwise it will create problem to you. तो ये कौन सी कंडीशन है? जब फंगस के हाइफे में जो माइसीलिया है, मीन्स जो माइसीलिया है, सम पार्ट ऑफ द माइसीलिया बिकम्स रिप्रोडक्टिव पार्ट. So these reproductive organs produces gametes. These gametes may be of same size, so male and female same size and shape, then it is isogamous, or may be of different size and shape, then it is anisogamous or oogamous. Okay, irrespective of their size and shape, let us see. When 2 gametes are fused, zygospore or zygote is formed, and this zygote starts growing, and after growth it gives rise to a body, big body of fungus, that is 2n. The shape of this body may be this shape or this shape or this shape. Okay, but some cells of this body, they starts which division? Meiosis cell division. हैं तो सारे 2n, all is 2n, but some 2n cells which is present in this body, they starts meiosis cell division and they produces haploid cells, and these haploid cells are nothing but haploid spores. These spores, because made from this 2n body, so these are called as sexual spores. ठीक है, and these spores may be called as, because हो सकता है फ्रूटिंग बॉडी में अलग अलग जगह पे लग रहे हों, सो देयर नेम्स आर oospores, ascospores और basidiospores. ये नाम है जो आपके बुक में भी दिए हुए हैं. दीज आर सेक्सुअल स्पोर्स. तो ये स्पोर्स भी कैसे होंगे? एन ही होंगे. स्पोर्स वो एन ही होंगे, बट दे आर मेड बाय सेक्सुअल मीन्स, सो इट इज सेक्सुअल स्पोर्स. इन द प्रीवियस वी हैड सीन दे वर मेड बाय एसेक्सुअल, डायरेक्टली इसे हाइफे से बन जा रहे हैं, दोज वर एसेक्सुअल स्पोर्स. ठीक है, बट एक और क्वेश्चन है डियर, कि कोई ज़रूरी नहीं है कि गैमेट्स बने तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. बिना गैमेट बने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है फंजाई में. वो इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए. अगेन आई एम सेइंग यू, it is not necessary in fungi that when the gametes are produced then only sexual reproduction takes place. Without gamete production also sexual reproduction takes place. क्योंकि कई ऐसे फंजाई हैं जिनमें गैमेट्स नहीं बनते फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो हम देखते हैं. ठीक है, ओके ओके. सो वी आर नाउ कंटिन्यूइंग that sexual reproduction in fungi without gametes, मतलब मेल और फीमेल गैमेट के बिना भी इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है. लेट अस सी हाउ. तो ऐसे फंजाई जिनमें गैमेट्स नहीं बनते वो क्या करते हैं? तो वो क्या करते हैं, जेनेटिकली 2 डिफरेंट हाइफे, थोड़े डिफरेंट स्ट्रेन के हाइफे, मैं ज़रा कलर डिफरेंट यूज़ कर लेता हूँ. ठीक है, so for example this is one hyphae shown in red color, this another I am showing with orange color, right? Okay, so both are septed, और ये सारे इसके क्या है, न्यूक्लियस हैं.
हाइफे, मान लो इसको हम प्लस हाइफे बोलते हैं, और ये हाइफे माइनस। These all nucleus are N. This is also N. ये सारे N हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये दोनों हाइफे आपस में पास आते हैं। So both हाइफे coming close और closer to each other। ठीक है, दोनों हाइफे को हम थोड़ा पास करते हैं ना। Suppose they came so closer that they are touching to each other। ठीक है, they came very close to each other। नाउ आपको पता है कि ये क्या है, साइटोप्लाज्म, और ये क्या बनाया मैंने, सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल वॉल। कि इसमें भी ऐसे ही होगा, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन। नाउ इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये माइनस स्ट्रेन है और ये प्लस स्ट्रेन, और ये है आपका सेल मेम्ब्रेन। इसका भी ये बाहर क्या है, सेल वॉल। तो ये इतने पास आ जाते हैं कि इन दोनों की सेल मेम्ब्रेन आपस में टच हो जाती है, सेल वॉल डिजॉल्व होगी मान लो, देन सेल मेम्ब्रेन्स आर, इन दोनों की सेल मेम्ब्रेन डिजॉल्व होकर एक सेल मेम्ब्रेन बन जाती है। तो उसको ज़रा फिर से देखते हैं। सेल वॉल बाहर से कनेक्ट हो गए और अंदर दोनों की सेल मेम्ब्रेन कंबाइन हो गई। तो क्या होगा फिर, एक ही सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको कितने न्यूक्लियस दिखेंगे, 2 न्यूक्लियस। इट इज़ माइनस न्यूक्लियस, इट इज़ प्लस न्यूक्लियस, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। ये प्लस है, ये माइनस है। तो क्या फ्यूज़ हुए, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आर फ्यूज्ड। क्या हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आर फ्यूज्ड। तो इसे कहते हैं, इस टर्मिनोलॉजीज को, या जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो जा रही है, दिस वी डिनोट बाय प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी। अब क्या हो रहा है, सेल एक है और एक सेल के अंदर न्यूक्लियस कितने, 2, एंड बोथ आर N। ये भी N है, ये भी N है। ठीक है, अब कुछ देर बाद क्या होगा, ये दोनों भी आपस में फ्यूज हो जाएंगे, दे विल कम क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, इसको भी ड्रॉ करते हैं। जब न्यूक्लियस ही फ्यूज हो गए दोनों के, तो एक नई सेल बन गई, जो कि हाइब्रिड है, 2 टाइप की सेल का ना तो उसमें प्लस है ना माइनस है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस एंड माइनस। सो नाउ न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड, दैट न्यूक्लियस, यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, देन सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल,
सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या है, जब दो एन फ्यूज़ होते हैं तो हम उसको जाइगोट बोलते हैं, दैट यू नो वी से इट एज जाइगोट। तो ये क्या बन गया, इट बिकेम नाउ 2n, so then it is zygote। zygote, और इसे क्या कहेंगे हम, जाइगोस्पोर ही बोलते हैं, आप जानते हैं, जाइगोस्पोर। अब यहाँ फ्यूज़ हुए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट वी टोल्ड एज प्लाज्मोगेमी, और यहाँ क्या फ्यूज़ हो गए, दोनों न्यूक्लियस। सो बोथ न्यूक्लियस आर फ्यूज्ड, दिस इज कॉल्ड एज, यहाँ लिखेंगे आप बोथ न्यूक्लियस फ्यूज्ड, तो इसे हम कहते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम से बना है कैरियो, सो इट इज कैरियोगैमी। सो देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इवेंट्स, one is plasmogamy and second is karyogamy. So when plasmogamy is happened, then plasma membrane is fused, and when karyogamy happens, then their nucleus are fused and now zygote is formed. अब आपको पता है zygote का क्या होगा, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ओके, मूविंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। सो ये zygote क्या होगा, this zygospore, बाकी का मैं कुछ नहीं बना रहा ना, 2n है। this zygospore will grow and after growing it will form a fruiting body, it will form a fruiting body। fruiting body का शेप कुछ भी हो सकता है, it may be sac like, it may be bucket like, it may be mushroom means umbrella shape, कुछ भी हो सकता है। so it grows and it forms a body, fungal fruiting body। और कैसा है ये, पूरा 2n है, all 2n। फिर after some time what will happen, some cells starts which division, meiosis cell division। तो meiosis cell division करेंगे तो आपको पता है 2n से क्या बनेंगे, 4n, n n n n, और वो कहीं भी लग जाएंगे ऐसे। so these are what now, sexual spores। अब इनका क्या होगा, these are spores, spores are released in air, हवा में आ जाते हैं फंगस के स्पोर्स, और सेम क्या करेंगे वो जर्मिनेट होंगे, स्पोर्स जर्मिनेट होंगे, देन आफ्टर जर्मिनेशन व्हाट दे विल डू, ऐसा जर्मिनेट होकर बाहर आएगा उनका हाइफा, देन हाइफे विल बिकम बिग, सेप्टेड। ऐसे 2 टाइप के हाइफे हो सकता है बन जाएंगे, और फिर से ही प्रोसेस शुरू हो जाएगी यहाँ से, वो ऐसे 2 हाइफे फिर मिक्स होंगे, मिक्स होने के बाद फिर जाइगोट बनेगा, फिर से स्पोर्स बनेंगे, वो स्पोर्स जर्मिनेट होंगे, आफ्टर जर्मिनेशन हाइफे विल बी फॉर्म, देन हाइफे टू हाइफे विल कंबाइन, जाइगोट स्पोर, दिस इज देयर लाइफ साइकिल। सो इन दिस वे दे डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट गैमेट्स, यहाँ कोई गैमेट नहीं बन रहा, 2 हाइफे मिल रहे हैं। अब एक चीज़ और दी है, कई बार ना ये कंडीशन, जो 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं, ये काफ़ी देर तक आपस में दोनों न्यूक्लियस मिलते ही नहीं है, तो एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस कई बार दिखते हैं, इस फेज को बोलते हैं डाइकैरियन। ये भी आप याद रखना। तो ये स्टेज हो गई कौन सी, 3। जनरली फंजाई में ये तुरंत ही दोनों न्यूक्लियस, आप जैसे ही इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज होता है, इमीडिएटली दे फ्यूज, मीन्स द न्यूक्लियस ऑल्सो फ्यूजेस एंड दे फॉर्म जाइगोट। बट इन केस ऑफ सम फंजाइज
दिस कंडीशन परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम। ये दोनों न्यूक्लियस अलग अलग काफ़ी देर तक दिखते रहते हैं, बहुत देर से फ्यूज़ होते हैं। तो ये कंडीशन क्या है, डाई मतलब होता है 2, कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस की फेज बहुत लॉन्ग टाइम तक दिखती है, दिस इज कॉल्ड एज डाई कैरी ऑन। I hope it's clear to you. So dear, here we have finished the sexual reproduction and asexual reproduction in fungi, and now the last thing about the fungi, that is classification, we'll see it. Okay, thank you so much, take care.